تو سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت بلند آواز سنائی دیتی ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس عبادت کے مفہوم لوگ کھول دیتے ہیں. کوئی کہے گا جی عبادت نیکی ہے جی, کوئی کہے گا جی لوگوں کے کام آنا عبادت ہے, کوئی کہے گا جی غور و فکر عبادت ہے. یار ساری باتیں ٹھیک ہیں, عبادت عبادت ہے, اس کو سادہ لفظوں میں کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تو بغیر غور و فکر کیے, بغیر اپنی ذات کی پہچان کیے, بغیر سوچے, بغیر علم حاصل کیے عبادت پہ گرے گا تو جانور ہے. بتا دیا قرآن پاک, بے سوچے سمجھے اللہ کی آیتوں پہ جانور کی طرح گرتے ہیں, نہ سوچا نہ سمجھا. یہ کیا عبادت ہے؟ اچھا اب ایک بندے نے کہا کہ جی اس عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں. کانسیپٹ یہ بھی ویسے غلط ہے, فرشتوں کے اور بھی بڑے کام ہیں. دے آر ویری بزی. عام طور پہ ان کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ ویسے ہی بس عبادت کے لیے ہیں. دے آر ویری سپر انٹلیکچوئل بینگز ہیں, وہ نوری مخلوق ہے, سربلند مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم چلا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نکلا اور اس نے یہ سوچا کہ یار میں یہ مسجد میں چلا جاؤں اور میں یہ نمازیں پڑھی جاؤں, ساری رات نفل پڑھی جاؤں, میرے سے تو نہیں ہوتے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں؟ اچھا اب اس کے کانٹریری جب ہم دیکھتے ہیں جن بزرگان دین کا ہم ذکر سنتے ہیں, صوفیہ کرام کا سنتے ہیں, علماء کرام بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ویری ہارڈ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے گئے. وہ کیسے کر گئے؟ دیکھیں سچائی وہ ہے جس کا ثبوت میرے پاس ہے. تو اب میری سچائی تو یہ ہے کہ مجھے تو ساری رات نہیں نوافل میں کھڑا ہوا جا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, میں مقصد حیات سمجھنے میں ناکام رہ گیا ہوں. تو اب میں دوسرے مقصد حیات کو لوں گا, میں کہوں گا نہیں جی میں ذرا غور و فکر کرتا ہوں, میں ذرا دیکھتا ہوں کہ میں کس لیے اس دنیا میں آؤں. اب شروع ہوا غور و فکر. جب غور و فکر شروع ہوگا تو پہلے لٹریچر میں سے گزرے گا, ہر ایک کا ایک طرح کا ہی راستہ ہے. ایسے ہی اور میں بار بار کہتا ہوتا ہوں آپ کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے, پرائیویٹ بچے ہیں اپنے ہیں, لیکن ہیں تو بچے نا, بچہ تو بچہ ہے. آپ کی تکلیف ہے, میری تکلیف ہے, پرائیویٹ ہے, لیبلڈ ایز پرائیویٹ, تکلیف ہے, ٹھیک ہے. تو نکلیں گے تو ایک طرح کے رستوں سے گزرنا ہے نا, تو وہ چلیں گے بانو قدسیہ, اشفاق احمد, یہ وہ سارے لٹرم پٹرم ادھر سے چیزیں نکلیں گی. تو کرتے کراتے پھر وہ روحانیت میں گھسیں گے, اور پھر مراقبے وغیرہ اور یہ چلے شلے سارے, اور پھر ان چیزوں سے گزراتے آدمی کے پاس اگر سالک سچا ہے, اگر آنیسٹ ہے, اور واقعی اس معاملے کو سمجھنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اتنی بار یہ سنا سوال, سمجھ ہی نہیں آتا تھا آخر کیا ہے. ایک بلری سا ایک ویژن سا آتا تھا کہ اچھا اس لیے آئے ہیں, اس لیے روحانیت کے لیے آئے ہیں, یہ جو ولی ہے یہ زندگی کا مقصد ہے. خود نہیں سمجھ میں, اپنی سچائی نہیں سمجھ میں آتی. اب نکلے تو مراقبوں سے جائیں گے, ہر چیز سے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا اگر سچا ہے تو سب سے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی تک پہنچے گا. وہ ہے پیوریفیکیشن آف دی سیلف, اپنے آپ کی پہچان. ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کیا طریقہ تھا. ریچولز پہ چل رہے تھے مذاہب سارے, بندشوں میں تھے, تپسیاؤں میں پھنسے ہوئے تھے, نروانوں میں, عرفانوں میں, پتہ نہیں کدھر کدھر پھنسے ہوئے تھے, جوگ لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پہ کیا ہے. وہ طریقہ کیا تھا؟ 11 بار قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں, اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور مارا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پولوٹڈ کر لیا, آلودہ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی جو ہے وہ میرے کریکٹر کی پیوریفیکیشن ہے. سیلف یعنی کہ نفس, بار بار کچھ باتیں کہی جانی پڑتی ہیں, ریپیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے, لیکن اب چونکہ جب سے یہ ویڈیوز والے کام میں آنا پڑ گیا, اس وقت سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ بعض باتیں اکثر دہرانی پڑیں گی. تو جو میرا کریکٹر ہے, جو میرا سیلف ہے, جو میرا نفس ہے, وہ میری عادتیں ہیں, ہیبٹس ہیں, جن کو میں روزانہ دہراتا ہوں. روٹین ہے. بار بار کہا, دیکھیں نا مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے, پچھلی ویڈیو میں بھی ایک میں بتایا تھا کہ یہ میرے کریکٹر کو اسموکر بناتی ہے. ناصر افتخار ایک اسموکر ہے کیونکہ وہ اسموکنگ کرتا ہے, اور وہ اسموکنگ روزانہ کرتا ہے, اور وہ روزانہ اس کو بار بار کرتا ہے. یہ چیز میرا کریکٹر ہے. ناصر افتخار ایک نمازی ہے کیونکہ وہ نماز کو روزانہ پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے. یہ کریکٹر. ناصر افتخار تسبیح کرنے والا ہے کیونکہ وہ تسبیح بار بار کرتا ہے. ناصر افتخار ایک باپ ہے کیونکہ اس کے بچے ہیں جن کو وہ روز پالتا ہے. تو جو بھی کام میں روزانہ کی بنیاد پہ بار بار کرتا ہوں اور کرتا ہی چلا آ رہا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا, وہی میرا کریکٹر ہے, یہی میرا سیلف ہے, یہی میرا نفس ہے. کتنا سادہ سا ہو گیا. اس کو اللہ نے کہا کہ یار اس کو ذرا پیوریفائی کر لو, اس کے ذرا خلاف جاؤ, اس کو تھوڑا سا ذرا پیور کر لو, ہلکا سا
ज्यादा नहीं कर सकते कि बड़े गुनाहों से तो तुम बचते ही रहोगे, तो छोटे तो तुम करोगे, अगर बच भी गए तो बड़े से बिल्कुल ऐसे। करोगे ही। तो थोड़ा सा प्योरीफाई कर लो, थोड़ा बचने की कोशिश तो करो, तकवा गार्ड करो, थोड़ा सा पीछे हटो, रुको, जरा सोच के करो। तो ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ तक पहुंच गया, यहीं पे आएगा बंदा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अड़ गया किसी जगह पे, मुराकबों में फंस गया, चिल्लों में फंस गया, तस्बीह को जिंदगी का मकसद समझ लिया, निर्वाण समझ लिया, किसी ने किसी को मकसद समझ, किसी ने अपने बाबे को समझ लिया, किसी ने किसी चीज को, किसी ने कुरान को समझा, किसी भी चीज पे जहाँ पे रुक गया वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा कि ये तूने मकसद समझा, इसी पे रुक जा, इसी पे रुक। आगे जाना है। अब आगे कहाँ जाना है? तो क्या चीज है जो आगे बढ़ती जा रही है? डेली रूटीन, मेरा नफ्स, जिंदगी। तो मैंने इसी के खिलाफ जाना है। ये जंग हर रोज मेरी लगनी है। सुबह उठते ही व्हाट्स इन स्टोर्स फॉर मी टुडे, इट बिगिंस, ठीक है, और मैं इसके खिलाफ जाना शुरू हुआ। अब जो भी बंदा चलेगा वो ला महल्ला, इफ ही इज और शी इज अ ट्रू सीकर, वो यहीं पे आएगा कि यार ये मेरा किसी चीज से कुछ नहीं मान रहा। और सर 20 साल तस्बीह करें, अभी कितनी लंबी वीडियो की थी तस्बीह के ऊपर, 20 साल तस्बीह करें, क्या बिगड़ेगा? जब तक आदतों के खिलाफ नहीं जाएंगे, दबाव पड़ता रहेगा, तस्बीह दबाव डालती रहेगी, बरकत आती रहेंगी, फ्यूज आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दबाव बढ़ता रहेगा, गिल्ट बढ़ता रहेगा कि यार मैं तस्बीह करने वाला बंदा हूँ, मेरे अंदर है पैड है, मैं तस्बीह करता हूँ, मैं उसके बावजूद ये वाला काम कर रहा हूँ, तो गिल्ट में ज्यादा जाता रहेगा ना। इतना गिल्ट बढ़ेगा कि आकर छोड़ने पे मजबूर कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, वरना फिर फेल हो जाएगा। तो तस्बीहात, नमाज, क्या कहा गया नमाज के बारे में? सूरह ज़ारियात डिस्कस की थी पिछली बार, क्या कहा? बुरे कामों से और फाशी से रोकती है, लोगों को रोक रही है, लगे हैं वैसे नहीं रोक रही है। तो क्यों कहा अल्लाह ने रोकती है? देखें, अल्लाह कहता है रोकती है, बंदे पढ़ रहे हैं नहीं रुक रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है? अपने सेल्फ के खिलाफ जा ही नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि लॉजिकल लेके रोकती है, ऑटोमेटिकली रोकती है। लॉजिकल ये नहीं हो सकता कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े और आदमी कहे कि मैं पॉर नहीं देख सकता, मेरे अंदर से वो हिस्सी मर गई, मेरा सेक्स फ्यूज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अल्लाह ताला ने कहा कि रोकेगी अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे, क्योंकि नमाज है, अल्लाह ने झूठी नमाजों का तो अल्लाह ने बात ही नहीं की ना। अल्लाह ने कहा नमाज रोकती है। अब एक बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरी नमाज पढ़ूंगा, वो पढ़ रहा है, अब उसकी जिबिलतें थोड़ा गंदमंद चल रहा है ना हर बंदे के अंदर ही, अब वो बेचारा इधर को होकर जरा आंख में चला के उसने कुछ देखा, अगर तो सच्चा है शर्म आएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, डीड बन जाएगा, माफी मांगेगा, नहीं क्यों नहीं देखेगा, माफी मांगेगा, फिर दोबारा से, हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट रहे हैं लेकिन मैं इसको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फिर दोबारा जाएगा नमाज में, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा जाएगा। तो नमाज रोक रही है ना? रोक रही है, बिल्कुल रोक। नहीं नजर आ रही है आपको नमाज रोक रही? इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ नमाज रोक रही है। 2 रिजल्ट पैदा होंगे, या वो छोड़ देगा, या रुक जाएगा, या नहीं रुकेगा। नमाज रोक रही है ऐसे ही। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल। नमाज इज फोर्सिंग टू स्टॉप, रुक की कर रहे हैं, लेकिन आदमी कह रहा है अच्छा फिर हो गया, नमाज कहती नो प्रॉब्लम, अब रुक। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रखेंगे सर? रखी नहीं जाएगी, नहीं रखी जाएंगी ना। तो कुछ लोगों ने रख ली है, क्यों रख ली? ढीठ बन गए, दिलों को जंग लगा लिया और कहा कि बस चलता है। तो उनको नमाज ने नहीं रोका, हालांकि नमाज रोक रही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ढीठ बन गए। अगर एक आदमी ये सोच लेता है कि मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तलब में जाना है, उसकी दोस्ती को जाना है, तो अपने मकसद पे अगर गौर करना शुरू करेगा तो वो इन सारी चीजों में से गुजरेगा जिनका मैंने जिक्र किया है। जब इनमें से गुजरेगा तो कहाँ पहुंचेगा हुजूर? वो बताएं जगह, आप बताएं। नहीं बताएंगे आप? अभी सेल्फ पे पहुंच गया, आ गया प्योरिफिकेशन पे, स्टार्ट कर दी प्योरिफिकेशन, आ गया ना जंग में। आदमी जब पूरी तवज्जो से, जब अज़म के साथ बरूए कार आने का फैसला कर लेना, तो फिर बरूए कार आता है ऐसे। कहते हैं ना चढ़ गई सेहत नू, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि यार मैंने नफ्स को अब जितना भी हो सका था मैंने इसको कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करनी ही करनी है। इल्म के साथ रोकेगा, जबर भी करेगा, पनिशमेंट एंड रिवार्ड के सिस्टम से भी रोकेगा, इल्म से भी रोकेगा, रोके भी रोके, जैसे भी रोके। आगे यहाँ तक, आगे कहाँ जाएगा? अल्लाह की तरफ। आगे की वीडियो आप बनाएंगे, आगे कहाँ जाएगा? अल्लाह की तरफ। कहाँ जाएगा? यही तो पूछा। अल्लाह की तरफ कहाँ कोई रोड जाती है? अल्लाह की तरफ कोई बहरी जहाज पे बैठ के जाना है? इबादत में जाएगा। इबादत बाई प्रोडक्ट है, इबादत पैदा होती है, की नहीं जाती। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब बता दिया है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो बात पैदा होगी, इबादत पैदा होगी, फिर खड़ा होगा सारी रात। तो लोग जिस कंसेप्ट में चल रहे हैं वो और है, वो कंसेप्ट नॉन इंटेलिजेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अनएजुकेटेड कंसेप्ट है।
जितना भी टाइम लग जाए सर, हम्म, मौत से 1 घंटा पहले इबादत पैदा हो जाए, हम्म, कोशिश में तो रहे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो क्या निकला इसके अंदर से? इबादत निकली है। कभी आपको फील नहीं होता कि जब दबाव आप पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो क्या शय पैदा होती है? अल्लाह की याद और उसकी इबादत। ऐसे ही है। उस नमाज को पढ़ने के लिए आपको कौन फोर्स करता है? कोई भी नहीं। और उस नमाज के बाद गुनाह कहाँ जाता है? थोड़ी देर के लिए रोक देती है, रोक देती है। सीज कर देती है। तो जब आप किसी भी रूहानी सिलसिले से चलें, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से आए, किसी भी आप तस्बीह से आ जाएं, आप मुराकबे कर लें, कुछ भी कर लें, आपने एक जगह पे पहुंचना है कि यार मेरा नफ्स गंदा है। गंदा है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने स्टेटमेंट दे दी है ना कि मेरा नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है, मैं अपने आप को इससे बरी तो नहीं करा देता, बिल्कुल तो आप मैं किस खेत की मूली हो गए कि अपने आप को मुतकी गए? अल्लाह ने रोका ना कि कहा ना करो, मुझे पता है तुम्हारा तुम कौन हो। फिर आगे उसने एक और जगह भी कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब माओ के पेटों में बच्चे से थे। बच्चे से थे। सर यही है ना ऐसे ही रियलिटी। है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आदमी जब अपने नफ्स की प्योरिटी में जाएगा तो क्या करेगा? अब मैं लेता हूँ अपने हाथ में ये वीडियो, तो क्या करेगा? अपनी बुरी आदतों के खिलाफ जंग शुरू करेगा। बिल्कुल। छोटी सी भी बुरी आदत जब खत्म होती है तो इतना ज्यादा टाइम अवेलेबल हो जाता है। गुनाह का मकसद क्या है? शैतान का इंसान को गुनाह पे उकसाने का उसका मकसद क्या है? इबादत से रोकना। नो, उसका टाइम वेस्ट करना। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे अर्ज किया था कि यहाँ तो दौलत वक्त है, ठीक है, बिल्कुल। और शैतान को खतरा है कि ये वक्त वेल कर जाएगा। उसने क्या कहा था ऊपर? मैं गुमराह करूंगा तेरे बंदों को, मैं उनके ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से आगे से ऊपर से पीछे से आऊंगा। बिल्कुल। वो क्यों आता है? वो इंगेज करने के लिए आता है, वक्त ज़ाया करने के लिए आता है। तो जब आप कोई भी बुरी आदत छोड़ते हैं, मैंने सिगरेट छोड़ी कोई 6-7 महीने, टाइम ही टाइम था। उस वक्त मुझे पता चला मेरे तो दिन के 3-4 घंटे सिगरेट ले जाती है। बिल्कुल। गुनाह करते हुए तो पता ही नहीं होता। अल्लाह ताला माफ फरमाए, हर आदमी में कमियां कोताहियां हैं, अल्लाह ताला मुझे भी इससे निजात अता फरमाए। बुरी आदत है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बात यह है, कोशिश में तो हूँ सिद्ध के दिल से, आपको तो पता है कितनी कोशिश की, अल्लाह ताला मालिक है, कभी ना कभी निजात अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो बात यह कि जब भी आप किसी छोटे से गुनाह को भी छोड़ेंगे, गुनाह में हर चीज ही डालने में, गुनाह को मैं बहुत ज्यादा उस फलसफे में नहीं ले रहा, गुनाह छोटा सा भी होता है, बड़े बड़े भी होते हैं। कोई भी गुनाह यानी कोई भी बैड हैबिट इज अ सिन। किसी इंसान को गुनाह दिली तौर पर पसंद नहीं आता। एक नफरत रहती है उसके दिल में, एक शर्मिंदगी भी रहती है, काना होता है कि मैं ये कर रहा हूं। तो जब भी आप किसी भी अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे तो जो चीज बचेगी वो वक्त है। अब चूंकि बुरी चीज को छोड़ेंगे तो हासिल क्या निकला? अच्छी चीज निकली। तो इबादत तो खुद ब खुद पैदा होनी है। बिल्कुल। एक आदमी ये कोशिश करता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी एक बुरी आदत को कुर्बान करूं, तो अल्लाह उसके नतीजे में उसके दर्जात बुलंद करता है। कैसे बुलंद करता है? उसके करैक्टर को बुलंद करता है, उसको नमाज की तरगीब के ख्यालात दे देता है, उसको कुरान पढ़ने की अट्रैक्शन दे देता है, क्योंकि उसके पास जो टाइम अवेलेबल हुआ है वो अल्लाह के जिम्मे है। तो इसलिए जब आप प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ के प्रोसेस में आ जाते हैं, जब आप एक्चुअली आ जाते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट्स की बातें छोड़ें जी, ये मेरे बाबा जी ये कहते हैं, मैं कौन जी, मेरा उस्ताद ये कहता है, ये कोई बातें नहीं है। अपनी कब्र में खुद ही जाना है। बिल्कुल। उस्ताद का बड़ा एहसान है, मैं वीडियो में बात करता हूँ अगली में इंशाल्लाह उस्ताद की पहचान के ऊपर। उस्ताद का बड़ा रुतबा है, कब्र में अपनी में खुद जाना है भाई, आखिरत में अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाए। यही है दो आसरे, उसके अलावा कुछ। सबसे बड़ा आसरा अल्लाह का, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल का आसरा है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो बात यह है कि जब मैंने खुद ही जाना है तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उस्ताद की मोटे से भागे छड़ गया, पार कौन लगाएगा? खुद ही गुजरना है। तो जब भी आप फाइनली टेरिबली ऑनेस्ट हो गए, अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तस्बीह, मुराकबा, नमाज, कोई भी चीज तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं शुरू करें। बरकत की बात छोड़ें, रूहानियात की बात छोड़ें, अलग टॉपिक है। और मुराकबे से लोग कशफ होने शुरू हो जाएंगे, झूठे सच्चे, मैं उसकी बात नहीं करता, वो फिर अलग किसी दिन तबीयत बहाल करेंगे अल्लाह ताला के फजल से। बात ये है कि आप वहीं के वहीं रहेंगे। और सर 1 सेकंड की मार है आदमी। ये जो झूठी रियासतें और ये जो मुजाहदे होते हैं ना, ज़ुहद की दुनिया जिसको कहा जाता है, एक इल्म की दुनिया होती है, एक ज़ुहद की भी दुनिया होती है। ये बाई फोर्स आते हैं लोग, एक झटके की मार होते हैं ये। एक औरत, एक बड़ी सी आजमाइश, एक गुर्बत का मुंह खोलता वास्ता, एंड यू आर गॉन, गायब गया। तो जो भी आदमी अपनी जिंदगी पे गौर करता आएगा और ये देखता आएगा, कर लें मुराकबा, कर लें चिल्ले काट लें, तस्बीह कर लें, अगर आपका करैक्टर बदल रहा है फिर ठीक है, और जिस तरह से मर्जी आ जाए भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं।
آپ کا فلسفہ سچ ہو گیا. کریکٹر پہ کام قرآن پڑھنا شروع کر دیں, ہر چیز میں ہدایت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا سارے گناہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا, لیکن آپ کا کریکٹر آپ کو پسند آنے لگ گیا. ایسے ہی اکیلے بیٹھ کے اللہ کے آگے گواہی دیتے ہیں, کیا میں یہ گواہی دے سکتا ہوں یا اللہ مجھے ناصر افتخار بڑا پسند ہے نا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. I don't like myself, I'm telling you truth. I don't like myself. کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا. شدید ترین سیلف ہیٹ ہوتی ہے. 15 سال ہو گئے لگے ہوئے, ابھی تک اپنے آپ سے حساب برابر نہیں ہوا میرا. نہیں ہو سکا, بالکل نہیں ہو سکا. ذرہ ذرہ کر کے بڑھنا پڑتا ہے. آپ 10 سال گھسٹتے گھسٹتے ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا چلتا ہے آگے سے, اور آپ 20 سال پیچھے جا کے گرتے ہیں. ایسے ہی اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر توبہ نہ ہوتی تو جب ساری زندگی کی تپسیا بھنگ ہوتی ہے نا, تو ہوتا کیا ہے آدمی کے ساتھ. شکر کرے آدمی کہ اللہ ہے, شکر کرے انسان کہ اس کی عبادت ہے. سوائے عبادت کے, سوائے سجدے کے, اس دنیا میں انسان کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہاں لیکن سوچے بغیر نہیں, غور کیے بغیر نہیں, آگ میں سے گزرے بغیر نہیں. یہ رزلٹ آپ کو سب سے آخر میں نکالنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے نکالا ہے, یو آر گون. دس از سو سمپل لائک واٹر. گزرنا پڑے گا ساری کیفیات سے, اپنے آپ ساری میں سے چیزوں سے. گزرنا پڑے گا, جھوٹ کے دریاؤں میں سے گزرنا پڑے گا. اور جب گزریں گے تو اس کے آخر میں ایک نور کا دروازہ کھلے گا, سچ کا, جس میں لکھا ہوگا کہ آؤ جائے نماز حاضر ہے, مقصد حیات آپ کا.